What is abetment? What is abettor? What is punishment for abetment where no specific provision is provided? What is the punishment when abetment, the intention and knowledge of the abettor was different from the person who abetted the act? Hello guys, this is Choli Tiwari from LawSikho. Today we are going to learn about very important sections, that is from section 107 to section 110, that is abetment part 1. So abetment part 1, abetment is a very important part of IPC because इससे बहुत सारे questions आते हैं जुडिशरी में और इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में कि अबेटर क्या होता है, अबेटेड क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है, क्या चीज़ें अबेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसकी पनिशमेंट क्या होती है. So we will talk about all that in our video. So before starting with the video, I would like you all to subscribe on my channel and like my page on Facebook and Instagram. So let's start with our video. So what is abetment? Abetment क्या है? Abetment defined as section 107 of IPC. So instigating someone, engaging in a conspiracy, or aiding or helping someone. Like these 3 points constitute section 107. अब aiding और engaging, अब आप बोलोगे दोनों तो सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? aiding मतलब हेल्प करना फॉर एक्ट और omission, कुछ करना या कुछ नहीं करने में हेल्प करना. engaging like engaging in a conspiracy. so help engaging से डिफरेंट है. so engaging in a conspiracy by act or illegal omission, by willful misrepresentation or willful concealment of the fact, attempt or procure to do a thing, voluntary causes or procures or attempts to cause a thing, is said to be, is defined under instigation of an act under abetment. So this was instigation. Now we will learn about what is aiding under अबेटमेंट. लाइक कोई क्राइम होने वाला है या फिर कोई क्राइम हो रहा है या फिर बाद में होगा, तो उस ड्यूरिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और बिफोर कमीशन ऑफेंस, प्रायर टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस किसी चीज़ में हेल्प करना, वो भी हमारे अबेटमेंट के अंडर ही आएगा. बाकी लाइक इन फिट ऑफ एंगर कुछ ऐसा बोल देना जिससे सामने वाला पर्सन इंस्टिगेट हो जाए, तो ये अबेटमेंट के अंडर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं था कि हम अबेटमेंट कर रहे हैं. Now section 108. Section 108 talks about the abettor. Abettor, the one who abets the offense. Abets, one who abets the offense and abets someone who has same intention and knowledge of that of the abettor. तो उस पर्सन को हम कहेंगे the person abetted. Abettor जो abet कर रहा है, वो जो abet हुआ है उस पर्सन से, उसको कहेंगे the person abetted with the same intention and knowledge of that of abettor. To commit an offense, to commit an act which will lead to an offense or committing of an offense. कोई ऐसा एक्ट करना जो आगे चल के ऑफेंस बनेगा या फिर ऑफेंस में हेल्प करना. सो ये चीज़ें ऑफेंस जो हो रहा है उसके लिए अबेट करना. सो ये चीज़ें अबेटर में आएंगी. अब इसके 5 एक्सप्लेनेशन है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. अब हम उनके गो थ्रू जाएंगे. एक्सप्लेनेशन 1. एक्सप्लेनेशन 1 टॉक्स अबाउट इलीगल ओमिशन ऑफ अ थिंग. इवन इफ जो अबेटर है वो इसमें है, लाइक उस टाइम वहाँ पे नहीं है, स्टिल ही हैज अबेटेड द एक्ट, तो वो लाइबल होगा. नाउ एक्सप्लेनेशन 2. नाउ द एक्ट अबेटेड मे और मे नॉट बी कमिटेड. लाइक A instigates B to murder C, but B refuses to do the act. Here A will be liable for abetment. Now explanation 3 talks about abetment of a person who is not capable under law to commit an offense. Still the person who abets him will be liable under the section, because as like we can take example of किसी को अबेट करना, इंस्टिगेट करना, किसी ल्यूनेटिक या किसी माइनर को इंस्टिगेट करना, अबेट करना कोई क्राइम करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं होगा वो पर्सन केपेबल नहीं है लॉ के अंडर तो हम उसे अबेटमेंट के सेक्शन में नहीं डाल सकते. हम उसे डाल सकते हैं क्योंकि द पर्सन हु वॉज अबेटिंग हैड दिस इंटेंशन और नॉलेज कि हम उससे क्राइम करवा सकते हैं. सो दिस वॉज एक्सप्लेनेशन 3. नाउ एक्सप्लेनेशन 4. अबेटमेंट of an offense is also
a crime like A abets B to abet C to murder D. तो ये एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइक ए ने अबेट किया बी को कि तुम सी को अबेट करो कि वो मर्डर कर दे डी का, तो यहाँ ए और बी अबेटमेंट के लिए लाइबल होंगे, तो ये भी ऑफेंस के अंडर आएगा। यहाँ ये नहीं हो जाएगी कि ए लाइबल नहीं होगा, ए भी लाइबल होगा क्योंकि उसने बी को अबेट किया। नाउ एक्सप्लेनेशन 5, अबेटमेंट इंगेजिंग इन द कॉन्स्पिरेसी, ऑल्दो उस टाइम पे आप प्रेजेंट नहीं हो, स्टिल आप लाइबल होगे कॉन्स्पिरेसी के अंडर कि आपने इंगेजमेंट था आपका उस कॉन्स्पिरेसी में। लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, ए अबेट्स बी टू मर्डर सी, हियर बी आस्क जेड टू एडमिनिस्टर द पॉइजन टू सी, कि वो उससे मर जाएगा। यहाँ पे ए का तो कोई हाथ नहीं है, लाइक ए ने किसी को पॉइजन नहीं दिया, ना ही बोला, बट ही स्टिल इंस्टिगेटेड और अबेटेड द एक्ट। तो वो कॉन्स्पिरेसी में चाहे उसने अपना कोई पार्ट लाइक कोई काम किया हो या ना किया हो, पर उसने अबेट किया, सो ही विल बी लाइबल अंडर एंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी। So these were the 5 explanation of section 108. 108A ये सेक्शन क्या बताता है? ये सेक्शन ये बताता है लाइक यहाँ पे आपने इंडिया में कोई चीज़ अबेट की है जो यहाँ पे ऑफेंस है, बट कहीं लाइक फॉरेन में वो चीज़ ऑफेंस नहीं है, बट आपने अबेट तो की है, तो उसके लिए आप लाइबल होगे। अब 109 talks about the punishment of the abetment where no specific provision has been provided. Like A abets B to give false evidence. Here B, as per said by A, gives false evidence, and here B will be liable for, and the offense gets committed. तो यहाँ बी तो लाइबल होगा ही होगा, साथ में ए भी सेम पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा जिसके लिए बी लाइबल हो रहा है, क्योंकि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन प्रोवाइडेड नहीं है अबेटमेंट के लिए। So this was section 109. Now let's come to our last section of part 1 of abetment, that is section 110. Now 1010 talks about commission of an offence by the person abetted with different intention and knowledge of that of the abettor. अब उसने ऑफेंस तो कमिट कर दिया, बट उसको पनिशमेंट वही मिलेगी जिसकी इंटेंशन और नॉलेज थी जो पर्सन उससे अबेट कर रहा था जिस ऑफेंस के लिए, तो पनिशमेंट उसे उसी ऑफेंस के लिए ही दी जाएगी। सो गाइज, हियर वी रैप अप विद आवर पार्ट 1 ऑफ अबेटमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अबेटमेंट पार्ट 2। फॉर नाउ जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में अच्छी लगी और क्या क्या नहीं अच्छी लगी, और हम कैसे अपने और आगे वीडियोस और क्या क्या बना सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।